So let's start with the second chapter, nutrition in animals. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और हमने डिस्कस किया था ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स यानी ऑटोमेटिकली खुद का खाना बना सकते हैं खुद, और हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरो यानी अदर, ट्रॉफ्स यानी नरिशमेंट, दूसरों से मिला हुआ नरिशमेंट. ठीक है, which depend on other plants and organisms for their food. ठीक है, coming to this chapter. So we have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. Okay, कैसे हमने डिस्कस किया था. But animals cannot, है ना, photosynthesis से animals नहीं बना सकते. Why? सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, बट सनलाइट ही पूरा खाना नहीं बन सकता है ना, ह्यूमंस का या एनिमल्स का. एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय eating plants or indirectly by eating animals that eat plants, है ना. Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. Now, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, what does animal nutrition include, या फिर define animal nutrition. तो इसका आंसर क्या आएगा? Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. ठीक है. So we have learned in the class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. तो पिछले चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हमने ये रिकॉल किया था, है ना. प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, राइट. द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. These complex substances cannot be utilized as such. मतलब कैसे हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे हम लोग को डायरेक्टली फूड में मिल रहा है, वैसे ही अपने बॉडी नहीं यूटिलाइज कर सकता है ना, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. ठीक है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग इन फूड. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज, या अलग अलग होता है इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, bees and hummingbirds suck the nectar of plants, है ना. फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स से वो नेक्टर सक करते हैं. Infants of humans and many other animals feed on mother's milk. Snakes like the python swallow animals they prey upon, right. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them, है ना. तो अलग अलग एनिमल जो है अलग अलग तरीके से फीड करते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं, है ना. वी टेक इन फूड. नाउ कमिंग टू डाइजेशन इन एनिमल्स, या सॉरी डाइजेशन इन ह्यूमंस. ठीक है, उससे पहले लेट्स रीड दिस अमेजिंग फैक्ट. ओके, आई विल जस्ट स्विच ऑन द लेजर. या, amazing fact. Starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate. ठीक है, अभी कैल्शियम कार्बोनेट इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस. ठीक है, आपके दांत जो है वो भी कैल्शियम से ही बने होते हैं. ठीक है, वी नो दैट आवर एनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, राइट. तो वो भी कैल्शियम का ही बना होता है. आफ्टर ओपनिंग द shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. तो यू नो ये बहुत मजेदार टाइप का न्यूट्रिशन था. डाइजेशन इन ह्यूमंस. वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, digest it and utilize it. The unused parts of the food are defecated, sorry, ठीक है, defecated निकाल जाते हैं. ठीक है. Have you ever wondered what happens to the food inside our body? The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity. Mouth को buccal cavity भी बोला जाता है, and ends at the anus. The canal can be divided into various compartments. So you need to note down this into your notes. Okay. So what are the 6 components of digestive system in humans? This can be the question.
The answer should be, first of all, it's the buccal cavity. Second is the food pipe or esophagus. Esophagus की spelling आप 3 बार लिख के लोगे तो learn हो जाएगी. Third is the stomach. Fourth is the small intestine. Fifth is the large intestine ending in the rectum. And then is the anus. Okay. Is it not a very long path? These parts together form the alimentary canal. ठीक है, तो अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है मुंह से लेके पूरा एनस तक, इस पूरे ट्रैक्ट को, इस पूरे वे को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंटरी कैनल. The food components gradually get digested as food travels through each component. ठीक है, the inner walls of the stomach and the smaller intestine and the various glands associated with canals such as salivary glands, the liver and pancreas, they all क्या, एक सब क्या करते हैं, juices secrete करते हैं जो breakdown में help करते हैं. ठीक है, digestive juices convert complex substances of food into similar ones. ठीक है, simpler ones. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. Define digestive system. यहाँ पे क्या आप क्या लिख सकते हैं? The digestive tract and the associated glands such as the salivary glands, the liver, the pancreas, stomach, small intestine, etc., which help in the breakdown of complex substances into simpler ones, together constitute the digestive system. तो मैंने इस पैराग्राफ को मर्ज किया प्लस इस पैराग्राफ को भी मर्ज कर दिया एक लाइन में. ठीक है, now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract, the mouth and the buccal cavity. ठीक है, food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called ingestion. ठीक है, we chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. ठीक है, हर एक दांत के लिए हर एक गम अलग अलग गम होता है ना. ऐसा नहीं है कि एक ही गम से दो टीथ जुड़े हुए, ऐसा नहीं होता, राइट. ईच एंड एवरी टीथ हैज इट्स ओन सॉकेट. सॉकेट यानी गम. ठीक है, our teeth vary in appearance and perform different functions. Accordingly, they are given different names. ठीक है, so here you can see arrangement of teeth and different types of teeth. ठीक है, we had learnt about molars, premolars, right, and the canines. ठीक है, you can see here these are the molars. ठीक है, ये तीन यहाँ के, ये तीन यहाँ के molars है. यहाँ के दो और यहाँ के दो ये है प्रीमोलार्स. यू कैन सी दिस वन. इनका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो आप, रूटेड स्ट्रक्चर है. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज कैनाइंस. द पॉइंटेड टीथ्स आर नोन एज कैनाइंस. और आगे के चार जो है, ठीक है. नाउ कमिंग टू आवर माउथ हैज सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है, हमारे मुंह में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स है व्हिच सीक्रेट सलाइवा. ठीक है, हमारे माउथ में क्या होता है, सलाइवा होता है. लेट्स सी, यहाँ पर जो है वो एक सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं विच हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, और these four teeth, I just missed, these four teeth are known as incisors. ठीक है, ये है incisors, बाजू में है canines, फिर आते हैं premolars and then molars. ठीक है, now do you know the action of saliva on food? Let us find out. ठीक है, तो यहाँ पर है एक एक्टिविटी, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम. ठीक है, एंड पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस. ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं. ठीक है, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स. तो स्टार्च जो होता है उसको शुगर्स में ब्रेक डाउन करता है सलाइवा. द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन attached at the back to the floor of the buccal cavity. It is free at the front and can be moved in all directions. Do you know the function of the tongue? Yes, we know. The tongue helps us to move the food in our mouth. It also helps us to speak clearly. We use our tongue for talking. Besides, that same thing which we discussed. Besides, it mixes the saliva with the food during chewing and helps in swallowing food. यानी निगलने में हेल्प करता है. We also taste food with our tongue, है ना.
टंग पे ही होते हैं टेस्ट बर्ड्स, है ना, वी कैन, ठीक है, it has taste buds that can detect different types of tastes in the food. We can find out the position of taste buds in the following activity. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पिक्चर दिया है, ठीक है, regions of the tongue for different tastes, ठीक है, तो वही आपको अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस टेस्ट करवाए हैं एंड it is told to write which region you feel the taste of the particular object, ठीक है, आपको लेमन जूस का टेस्ट कहाँ पे लग रहा है, अगर आप पाइनएप्पल खाते हो राइट, तो पाइनएप्पल आपको यहाँ पे कुछ चीवी चीवी सा लगता है ना, तो यू कैन नोट डाउन दोज ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फूड पाइप और esophagus. The swallowed food passes into the food pipe or esophagus. The food pipe runs along the neck and the chest. Food is pushed down by the movement of द वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब फूड पाइप की जो वॉल होती है ना वो मस्कुलर होती है, वहां पर थोड़ा फूड जाता है तो आगे का यहाँ पीछे का पार्ट क्या होता है वो उसको वो बंद होके पुश करता है आगे, फिर ये आगे जाता है और फिर ऐसे जाता है आगे जाता है, ठीक है। सो दीज मूवमेंट्स ऑफ पुशिंग or contraction and relaxation of the muscles of the esophagus are known as peristaltic movements. तो ये आपको नहीं है, you can ignore, but for just information these movements are known as peristaltic movements. Okay, food is pushed down by the movement of the wall in the food pipe. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal. ऐसा movement जो है वो पूरे alimentary canal में होता रहता है and pushes the food downwards. At times, the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instances when you vomited after eating and think of the reason for it. ठीक है? The stomach. The stomach is a thick-walled bag. Its shape is like a flattened J, and it is the widest part of the alimentary canal. ठीक है? Widest मतलब सबसे मोटा वाला. ठीक है? Okay. So it is the widest part of the stomach. The inner lining, ठीक है, it receives the food from the food pipe. अभी food pipe से खाना कहाँ जाता है, stomach पे जाता है, ठीक है। It receives the food from the food pipe at one end and opens through the small intestine at the other, ठीक है। And we have heard that अपने stomach में ना HCl होता है, right, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो have you ever thought हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और लोग बोलते हैं कि एसिड्स आर वेरी हार्मफुल, राइट, दे आर हार्मफुल। आपको एसिड के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। एसिड अगर आप अपने हाथ के ऊपर से डालोगे ना, हाथ में होल होके नीचे गिर जाएगा, दैट हार्मफुल इज दैट एसिड। तो नाउ यू कैन थिंक हाउ अपने पेट में एसिड कैसे होता है ना। तो अपने पेट में ना देयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, यहाँ पर म्यूकस का एक लेयर रहता है फॉर protecting the walls of the stomach from the HCl acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अभी एसिड क्यों है, एसिड पहली बात तो जर्म्स को मारने में हेल्प करता है, फूड में जो भी जर्म्स है उनको मारने में हेल्प करता है, और देयरफॉर और वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड्स में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये दो है जिसमें वो हेल्प करता है, एंड इट आल्सो क्रिएट्स एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर रिएक्शन ऑफ सम डाइजेस्टिव जूसेस। थोड़े जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ही रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे एसिड्स के लिए या ऐसे जूसेस के लिए वो एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है। सो यू विल लर्न दीज ऑल इन योर हायर क्लासेस, ठीक है। Now, the inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. The same we have discussed now. ठीक है, तो अभी digestive juices क्या करती हैं? They break down proteins into similar और simpler substances. ठीक है, simpler substances में proteins को break down कर देती है। The small intestine. The small intestine is highly coiled मतलब बहुत ज्यादा folded है, circular मोशन में फोल्डेड है, ठीक है, एंड इज अबाउट 7.5 meters लॉन्ग। इट रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियास, ठीक है, लिवर से बाइल जूस आता है एज वी हैव लर्न, और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आता है। बिसाइड्स इट्स वॉल्स आल्सो सिक्रीट जूसेस, स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की वॉल्स भी जूसेस सिक्रीट करती हैं। द लिवर इज द रेडिश ब्राउन ग्लैंड situated in the upper part of the abdomen of the right side.
It is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in a sac called gall bladder. ठीक है, गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस को सेव करता है या स्टोर करके रखता है. द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. ठीक है. The pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach. The pancreatic juice acts on carbohydrates, fats, and proteins and changes them into simpler forms. ठीक है? The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes and digestion of all components of food. ठीक है, completes the digestion of all components of food. Sorry. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. The carbohydrates get broken into simple sugars such as glucose, fats into fatty acids and glycerol, and proteins into amino acids. Absorption in small intestine. The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. ठीक है, क्या हो रहा है कि अभी जो भी न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन हो गए हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से एब्जॉर्ब हो जाते हैं. The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths or projections. These are called villi. Singular में विलस कहा जाता है, प्लूरल में विलाय होता है. ठीक है, अभी इन विलाय का क्या फंक्शन है? The villi increase the surface area for absorption of the digested food. Thus, each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. ठीक है, the surface of the villi absorbs the digested food materials. Okay, villi क्या करता है? It absorbs the digested food materials. अभी क्या होता है, the absorbed जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विलाई ने सब न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लिया. अभी ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड वेसल्स इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी where they can be used to build complex substances such as protein required by the body. This is called assimilation. अभी हमने क्या क्या पढ़ा? इंजेशन पढ़ा, मतलब अंदर लेना, इंजेशन. फिर पढ़ा हमने डाइजेशन, अंदर लेने के बाद क्या होता है, पेट में और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है. फिर होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. फिर होता है एसिमिलेशन, यानी दूसरे दूसरे जगहों पर उन न्यूट्रिएंट्स को भेजना जहां उनकी जरूरत है ना, एसिमिलेशन. फिर आगे हम पढ़ेंगे इजेशन. सो दीज आर द 5 प्रोसेसेस included in the digestive system of any organism, whether it be amoeba, whether it be human or anything. ठीक है, this is called assimilation. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remains undigested and unabsorbed enter into the large intestine. ठीक है, अभी large intestine में क्या होता है? Large intestine is wider but shorter in length than the small intestine. अभी large intestine क्या है? वो मोटा है. ठीक है, वो बड़ा दिखता है पर बड़ा नहीं है, उसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है, बट इट इज स्मॉलर इन लेंथ. वो क्या है? सिर्फ 1.5 मीटर का है, वाइल अपना स्मॉल इंटेस्टाइन कितना है? 7.5 मीटर का है ना. अभी लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इज टू एब्सॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. The remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-solid feces. The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. ठीक है, हमने ये पढ़ लिया, egestion. ठीक है, digestion in grass-eating animals. Have you ever observed cows, buffaloes, and other grass-eating animals? ठीक है, ठीक है. Now we'll go with digestion in cows, buffaloes, etc. ठीक है. Have you ever observed cows, buffaloes, and other grass-eating animals chewing continuously even if they are not eating? है ना, हमने देखिए कभी कभी काउ बफेलो जो है वो ऐसे ही नॉर्मली बैठे रहते हैं, बट स्टिल दे आर चीविंग समथिंग, है ना. एक्चुअली दे क्विकली स्वैलो द ग्रास. वो क्या करते हैं? ग्रास खाते हैं, निगल जाते हैं, फिर उस ग्रास को स्टोर करते हैं इन द पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड rumen.
RUMEN, rumen, ठीक है, यहाँ पर है, okay, laser, yeah, rumen. Here the food gets partially digested and is called cud. फूड को क्या बोला जाता है? कड. बाद में क्या होता है? कड रिटर्न्स टू द माउथ. वो फूड वापस मुंह के पास आ जाता है इन स्मॉल लंप्स, छोटे छोटे पार्ट्स में. वो वापस माउथ के पास आ जाता है एंड द एनिमल चीव्स इट. वापस वो काउ जो है या बफेलो जो है उसको चीव करने लगता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination and these animals are called ruminants. The grass is rich in cellulose. अभी इतना क्यों चीविंग लगता है? और आप देख सकते हैं इतने सारे स्टमक्स क्यों है, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों है इन एनिमल्स में, काउस बफेलोज में? क्योंकि सेल्यूलोज जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग या कॉम्प्लेक्स टाइप का कार्बोहाइड्रेट है और उसको बहुत ज्यादा डाइजेशन लगता है. एंड ग्रास जो है 24 आवर्स काउस या बफेलो जो है वो ग्रास ही खाते रहते हैं, है ना, बिकॉज दे आर हर्बीवोरस, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, है ना. इसलिए क्या होता है कि उन्हें इतना ज्यादा डाइजेशन की जरूरत पड़ती है. द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in the rumen helps in digestion of cellulose. अभी उनकी rumen जो है या फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक में वहां पर बैक्टीरिया होता है और वो हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज में. Many animals, including humans, cannot digest cellulose, है ना. Animals like horses, rabbits, etc., have a large sac-like structure called cecum between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेल्यूलोज इतना स्ट्रॉन्ग या इतना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसके लिए अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया लग रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, है ना. सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स व्हिच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, हमने अभी क्या देखा कि ऐसे एनिमल्स को देखा जिसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है. काउ के पास ये रूमेन वाला है, रूमिनेंट्स वाला, और हॉर्स रैबिट्स के पास क्या है, केकम वाला है ना, जो इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में आता है ना. तो अभी हमने देखा तो इनके सबके पास क्या है, एक अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम है, हर एक टाइप का सिस्टम है ना. पर अब हम क्या देखेंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है ना. अभी यू नो दैट हमारे अंदर सेल्स है ना. सेल ग्रुप होके क्या बनता है, टिश्यू. टिश्यू का ग्रुप बन के क्या बनता है, ऑर्गन बनता है. एक ऑर्गन और ऑर्गन अलग अलग जब सब साथ में काम करते हैं तो एक बनता है ऑर्गन सिस्टम, है ना. अभी ईसोफेगस का खाना जब नीचे जाएगा तभी स्टमक काम करेगा. तो इन सब का क्या है, मिल के काम कर रहे हैं. फिर स्टमक के पास स्मॉल इंटेस्टाइन, दे आर वर्किंग टुगेदर, है ना, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के बाद काम कर रहे हैं. बट अगर सिर्फ एक सेल से पूरी बॉडी बनी हो तो यू कैन जस्ट इमेजिन उस एक सेल में ना कोई सिस्टम होगा, ना कोई ना कोई बराबर प्रोग्रामिंग होगा या मतलब इस सिस्टम के बाद ये सिस्टम चलेगा, है ना. ऐसा कुछ होगा ही नहीं, राइट. सो देयरफॉर लेट्स सी कि ऐसे एनिमल्स कैसे काम करते हैं. ठीक है, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब ना उसमें कोई ऑर्गन है, ना उसमें कोई टिश्यू है, ना उसमें कोई ऑर्गन सिस्टम है. ठीक है, amoeba is a microscopic single celled organism found in pond water. amoeba has a cell membrane. cell membrane मतलब बाहर के आउटर कवरिंग है सेल की. ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ही सेल है, उतनी एक ही जान है उसके पास, वो भी एक सेल वाली. ठीक है, इसलिए उसको आउटर कवरिंग चाहिए, है ना. हमारे ह्यूमंस के बॉडी पे कैसे स्किन है, तो उसकी स्किन है सेल मेम्ब्रेन. अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस. न्यूक्लियस यानी ब्रेन. ह्यूमंस में कैसे ब्रेन होता है, उनमें न्यूक्लियस होता है. ठीक है, एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स. अभी ह्यूमंस में क्या होता है, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, जो बहुत कुछ स्टोर करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं. तो वैक्यूल्स सिमिलरली एनर्जी स्टोर करते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में, यानी सेल्स में. ठीक है, चाहे वो सिंगल सेल्ड वाले हो, चाहे वो ह्यूमन सेल्स हो. ह्यूमन सेल्स, प्लांट सेल्स, इन सारे टाइप के सेल्स में ये सब प्रेजेंट होते हैं. साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, वैक्यूल्स होते हैं. ठीक है, इनेट्स एंड फिर क्या होता है, वैक्यूल कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म यानी जो पूरा आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरा उसका बॉडी,
ठीक है, पूरा बॉडी में जो भी स्पेस है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जहां पर बाकी सब ऑर्गन्स या ऑर्गेनल्स, ठीक है, ऑर्गेनल्स बोला जाता है सेल के अंदर वाले पार्ट्स को, ठीक है, ORGANELLES, ऑर्गेनल्स, ठीक है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन, ठीक है। अभी कोई नया नया अगर फर्स्ट टाइम चपाती बनाने गया हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो अमीबा जैसे चपाती बनी है। अमीबा मतलब उसका कोई परफेक्ट शेप नहीं होता, कभी भी कुछ भी शेप बन जाता है, कभी भी कुछ भी शेप हो जाता है ना। सो एटलीस्ट वो ट्राई तो कर रहे हैं, ठीक है, अमीबा तो मत बोलो, ठीक है। नाउ इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, अभी अपने उंगलियां जैसी हैं वो वैसे क्या करता है, अपने बॉडी का शेप कर देता है, ठीक है। आप देख सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सुडोपोडिया और फॉल्स फीट। अभी इस सुडोपोडिया इस वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं। पहली बात तो पी साइलेंट है, इसलिए हम बोल रहे हैं सुडोपोडिया, ठीक है। अभी सुडो मतलब फॉल्स यानी झूठा, पोडिया मतलब फीट, इसलिए फॉल्स फीट फॉर द मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, ठीक है। अभी वो क्या करता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन छोड़ देता है फूड को कैप्चर करने के लिए। यू कैन सी ये एक प्रोजेक्शन है, ये एक प्रोजेक्शन है, और ये है फूड पार्टिकल, ये है इंजेस्टेड वेस्ट, ठीक है। वेस्ट को रिलीज करने के लिए भी वो ऐसा फूड पार्टिकल यहाँ पे सूडोपोडिया छोड़ दिया, मूवमेंट के लिए एक सूडोपोडिया, और यहाँ पे फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करने के लिए, इंजेशन अंदर लेने के लिए भी एक दो सूडोपोडिया, देखा, वो अंदर ऐसे लेके ट्रैप कर लेता है उसको, ओके। अमीबा feeds on some microscopic organisms. When it senses food, it pushes out its pseudopodia around the food particle and engulfs it. उसने क्या कर दिया, यहाँ पे pseudopodia पुश कर दिया, और वो सिमिलरली उसके बाजू बाजू में एक पूरा ग्राउंड टाइप बना देगा, मतलब उसको बाहर जाने ही नहीं देगा। फिर क्या कर लेगा, उसको ट्रैप कर लेगा, एनगल्फ कर लेगा, ओके। The food becomes trapped in a food vacuole. Digestive juices are secreted into the food vacuole. They act on the food and break it down into simpler substances. Gradually, the digested food is absorbed, है ना। Similarly, अभी ingestion हो गया, फिर क्या होगा, digestion होगा digestive juices की help से, फिर क्या होगा, absorption होगा, absorb करेंगे nutrients को, फिर assimilation होगा, है ना। assimilation कैसे होगा, यहाँ पे जो nutrients है उनको cytoplasm में ही release कर देते हैं, जो आजू बाजू में स्पेस है वहां पर ही रिलीज कर देते हैं, क्योंकि और कोई ऑर्गन मतलब और कोई स्पेस ही नहीं है रिलीज करने के लिए, राइट, और कोई ऑर्गन ही नहीं है जो न्यूट्रिएंट्स को लेके जाए। ह्यूमन बॉडी में क्या है, ब्लड वेसल्स है जिससे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। उस एक सेल में ब्लड वेसल्स भी नहीं है, क्योंकि ब्लड वेसल्स भी खुद सेल से बनी होती है ना। यहाँ पर एक सेल की बॉडी में इतना सारी चीजें नहीं हो सकती। The absorbed substances are used for growth. अभी जो absorbed substances हैं उनको growth के लिए यूज किया जाता है, maintenance of the body, body को maintain करने के लिए यूज हो जाता है, और multiplication ऐसे ही और अमीबा बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। The undigested residue of the food is expelled outside the body. Egestion, ठीक है। अभी बाकी के चार हो गए तो पांचवा प्रोसेस भी egestion हो जाएगा। The basic process of digestion of food and release of energy is same in all organisms, है ना। ये जो बेसिक पांच प्रोसेसेस है कौन से हैं, ingestion, digestion, absorption, assimilation और digestion। ये पांचों प्रोसेस जो है वो हर एक एनिमल में सेम है। एनिमल क्यों बोला, क्योंकि प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ्स है, खुद का खाना खुद बनाते हैं, है ना। Now, in a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. Okay? So हम आगे के chapters में बाकी topics भी देखेंगे. Okay? Thank you.